Hello, good afternoon, students. A very happy new year to all of you. So, today we are going to discuss the topic MSc 029 Cyber Attack Use of Technology in Cyberspace. This is a part one of the lecture, and this will be very useful for from the examination point of view. And this is your academic counselor, Soap sir, who is going to take this class. So, let's start the class. Now, few definitions are there that we should go through, and there are so many basic concepts of networking that is also required. But I will be doing it in a very fast manner. But whatever topics I have discussed over here, those will come in the paper, and you have to go through it thoroughly. Okay, and you have to because I'll be telling each and every concepts in a proper way. So you shouldn't leave the lecture in between. Okay, and you should complete the lecture properly so that yeah you can gain the insights of this subject or course. Okay, so you should be very much thorough about the concepts. Okay, about the networking technologies. Yeah, because networking is a basic concept, data communication networking that we have studied in frozen. This is the next level because it is a network security topic. But few concepts whatever we have studied in networking, those we are going to discuss over here. So this the whatever topics I have discussed over here, those are very important from the examination point of view. So you must go through it. It's not that I'm discussing these topics. These are not important. These are important. Whichever is not important, I'm not discussing over here, and I won't be discussing. I'll be giving in a very short. I'll be giving a short description, and then I'll go to the next topic. Okay. Now let's start. Cyberspace. What is cyberspace? It can be defined as a complex environment that involves interactions between people, software, and services. Okay, it is the interaction between people, software, and services. This is known as it is a complex environment where interactions are happening between people, software, and services. That is cyberspace. It is maintained by the worldwide distribution of information and communication technology devices and networks. Okay, and what is cybersecurity? They denote the technologies and procedures intended to safeguard the computers, networks, and data from unlawful admittance, weakness, and attacks transported through the internet by cyber delinquents. Okay, so by cyber delinquents means that attackers. You can say hackers. Yeah, that is yeah, black hat hackers. You can say. Okay, so cybersecurity is protecting ourselves, safeguarding our computers, networks, and data from unlawful acts. You can say. Okay. Now, what are the characteristics of cyberspace? This is also important. In cyberspace, we all have the same communication opportunity. Some call this net डेमोक्रेसी. सबके अपॉर्चुनिटी सेम ही है क्योंकि इट इज ऑल इन द इंटरनेट. इंटरनेट में आपको जितना अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, आपको जो तो जितना फ्रीडम मिलेंगे, सबको उतने ही फ्रीडम मिलेंगे. हाँ, वो बात अलग है जब मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसमिट हेट स्पीचेस और समथिंग लाइक दैट. उसकी फ्रीडम नहीं होते हैं, लोग करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट फ्रीडम मीन्स ये नहीं कि कुछ भी कर ले इंटरनेट में, कुछ भी नहीं. ठीक है. इट ट्रांसेंड स्पेशल बाउंड्रीज. क्या ये देखो, स्पेशल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होते हैं इसमें, बाउंड्रीज. उस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं जाना है. फ्रीडम डजंट मीन दैट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, यू आर फ्री. जियोग्राफिक डिस्टेंस डू नॉट लिमिट हु कैन कम्युनिकेट विथ होम. जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं यहाँ बैठ के आई कैन टॉक टू इन अमेरिका, इन स्विट्जरलैंड, एनीवेयर. Okay, through Skype or with so many softwares are there through that. Okay, so yeah, geographical distance doesn't limit. You can communicate with anyone who is in another country. हाँ, कोई भी country में हो, you can communicate with those people. Okay, hope I'm clear. Now there are few types of networks. One is personal area network, one is LAN, one is MAN, one is WAN. Okay, this is also important क्योंकि ये भी पूछेंगे लोग पेपर में, एग्जाम में पूछते हैं लोग. ये लैन मैन वैन पैन क्या होते हैं, ये भी पूछ लेंगे. 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ ही सकता है. हम लोग ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, विच इज वेरी पर्सनल टू यूजर. जब पर्सनल होता है यूजर के, दिस नेटवर्क यूज्ड इन द पर्सनल स्पेस ऑफ पर्सन, दैट इज व्हाई द नेटवर्क नेम इज पर्सनल नेटवर्क. दिस नेटवर्क नॉर्मली रेंजेस विद इन 10 मीटर्स. 10 मीटर्स के रेंज में जो भी होगा नेटवर्क, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस और इंफ्रारेड डिवाइसेस, ये सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क है. दिस आर ऑल पर्सनल एरिया नेटवर्क. Okay, so we can connect two devices using Bluetooth for data transfer. Then we create a network in our personal space. All the Bluetooth device वो सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर में आ रहे हैं.
या इंफ्रारेड डिवाइसेस, टीवी रिमोट। मैं यहाँ पे टीवी रिमोट है और मैं पड़ोसी का बिल्डिंग के हम वो उसको चेंज नहीं कर सकते चैनल को। तो दिस आर ऑल पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ वन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? इट इज स्मॉल नेटवर्क दैट कवर स्मॉल ऑफिस, कॉलेज, बिल्डिंग, एटसेट्रा। ओके, इन दिस network we can connect computers, printers, servers and other network devices. ठीक है, local area network is privately owned network. That means anyone can create this network easily. We just need to have some cables, ethernet cables or central devices like hub or switch. hub और switch का जरूरत होता है जिसको जितना कनेक्शन चाहिए। एक, हाँ ठीक है, ए को चाहिए तो एक कनेक्शन स्विच से दे दिया, बी को चाहिए बी के लिए एक, केबलिंग करके हम दे सकते हैं। It is the most secure network because there is no outside connection with the local area, with the local area, with the local area network. So the network which is shared to the LAN network is safe and can't be accessed outside. बाहर नहीं जाएंगे। LAN networks are small in size, networks, so they are considerably faster. Data transfer speed over LAN can reach up to 1000 Mbps. ठीक है, इतने फास्ट होते हैं। Using Ethernet cable data transfer speed can reach up to 10 Mbps, and by using FDDBS, GGBS, it speed can reach up to 1 Gbps. ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि लैन मतलब ये नहीं जे आप लिखोगे बिल्डिंग में ऐसे हो गया कनेक्शन, बिल्डिंग से हो गया, स्कूल में हो गया, कॉलेज हो गया, ये नोट्स नहीं चलेंगे। कुछ टेक्निकल बातें भी आपको लिखने पड़ेंगे, जिस तरह का टेक्निकल बातें यहाँ पे हैं। जैसे इथरनेट केबल यूज करोगे 10 Mbps, एफडीडीआई और गीगाबिट इथरनेट यूज करोगे तो डेटा ट्रांसफर कैन रीच अप टू 1 GB। इस तरह का टेक्निकल बातें करोगे। जैसे आप बोलोगे जब मैं इतना लिखा और आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स बिकॉज यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट अ क्लास 12 स्टूडेंट, दैट मीन्स आप क्लास 12 का या 11th के बच्चों को तरह आप आंसर लिखोगे। थोड़ा सा लेवल होना चाहिए आंसर्स में भी, अच्छे क्वालिटी का आंसर। अब यूज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? Local area network are mostly used in business, where all business data is stored in servers. This network can be used in factories. This network can be used in colleges, schools, college, where all students, teachers, staff, and all the data stored in servers. सारे कुछ वो कर सकते हैं। जो सर्वर है, सर्वर भी को स्कूल कॉलेज के अंदर ही होते हैं। This data can also be in our homes, where all the computers, mobile, printers are connected to the switch router, and these devices can exchange data. ठीक है, नॉर्मल है, इसमें तो कुछ बोलना नहीं है। अब लैन दो टाइप का होता है, एक होता है क्लाइंट सर्वर लैन और एक होता है पीयर टू पीयर लैन। ठीक है, दो टाइप का लैन होता है। अब क्लाइंट सर्वर लैन क्या है? इज मोस्टली यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेंट्रल सर्वर, ये देखो सेंट्रल सर्वर बीच में है। ठीक है, सेंट्रल सर्वर एक, दिस वन इज द सेंट्रल सर्वर। ठीक है, where the central servers and all the business data stored in the server, सब कुछ सर्वर में है। all the clients computer connected to the central server, use setup where they can access data from the server। ठीक है, ये सारे क्लाइंट डेटा हम सर्वर से ले सकते हैं। और पीयर टू पीयर क्या होते हैं? अब सर्वर क्या है, यहाँ पे हब हब और स्विच से कनेक्ट है, और जितने भी हमें क्लाइंट के जितना कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना है वो हम हब में करना है। सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन स्विच और हब में जा रहे हैं, और हब से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेट को भी हब से कनेक्टेड है, और हब से सब कोई कनेक्टेड है। प्रिंटर इज ऑल्सो, जैसे क्लाइंट ए, सपोज दिस इज ए क्लाइंट, दिस वन इज बी क्लाइंट, दिस इज सी क्लाइंट। ए क्लाइंट कोई प्रिंट आउट देना निकालना चाहे तो थ्रू हब और स्विच, द मैंने क्या बोले, उसका जो ऑर्डर ऑर्डर जो करेगा प्रिंट के लिए, हाँ, तो इट विल गो टू द प्रिंटर एंड ही विल गेट, ही और सी विल गेट द प्रिंट आउट। तो ऐसे करके। अब पीयर टू पीयर लैन networks are mostly used in homes where all computers are connected to each other and can exchange data with each other without a server। जहाँ कोई सर्वर नहीं होते, without a server। if your homes computers tablets all are connected to your home Wi-Fi connection, then you're using LAN network and all these devices are connected to your home central device, and these devices can share data with each other through a LAN network। तो ये क्या बोलते हैं, इसको सर्वर बोलते हैं। peer to peer LAN you can say। the actually a hub, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो हब या स्विच है ये यही सर्वर की तरह एक्ट कर, सर्वर नहीं, यू कैन से कनेक्शन की तरह, और ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। दिस वन इज द इंटरनेट, यहाँ से सारे कनेक्शन जा रहे हैं। अब मैन, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? बिगर होता है, बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटीज, विद इन सिटीज ऑल्सो इट कैन बी डन। ए नेटवर्क इज सेड टू बी मैन नेटवर्क व्हेन द जियोग्राफिकल एरिया इज बिगर। जब एरिया बिगर है दैट इज ए मैन। ओके, suppose a business company has many branches in different locations and every branch uses a LAN network.
So the company connects all these LANs together through a telephone line. Now this network becomes a man network. ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सब लैन से कनेक्टेड है. अब टेलीफोन लाइन से सबको कनेक्ट कर दिया मैंने, तो इट बिकम्स ए मैन. ओके. अब यूज क्या होते हैं? इट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ठीक है, मिलिट्री एरियाज, ये सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं. होप आई एम क्लियर. अब वैन क्या, तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो पता ही है. जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो आप एक्सेस करके मेरा लेक्चर्स देख रहे हो, ऑल आर थ्रू वैन. मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, मैं आपको लाइव लेक्चर्स दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो दैट इज अ वैन. सिंपल. इसके बारे में ज्यादा क्या बोलूँ मैं. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. आप लोग जो डायग्राम बनाओगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एग्जाम में आपको मार्क्स देंगे. ठीक है, तो यू मस्ट गो थ्रू द डायग्राम्स. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. होप आई एम क्लियर. अब नेटवर्क टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या होता है? इज ए पैटर्न यूज टू अरेंज द नोड्स और स्टेशंस ऑन ए नेटवर्क. माने किस तरीके से मैं कंप्यूटर को सजाऊंगा जिससे डेटा कनेक्ट हो सके, डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, ठीक है, डेटा को भेज सके. तो दैट टोपोलॉजी इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स. यू कैन से इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स, नोड्स और वर्क स्टेशन ऑन ए नेटवर्क. दैट इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी. टोपोलॉजी में क्या क्या होता है? एक लॉजिकल होता है, एक फिजिकल होता है. दो टाइप का होता है. लॉजिकल क्या होता है? मीन्स हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क. This topology is bound to the network protocols and defines how data is moved throughout the network. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू से ये लॉजिकल टोपोलॉजी हम यूज करते हैं. ठीक है, आप लॉजिकल, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, वो आगे हम देखेंगे, उससे हम रिलेट कर सकते हैं. और फिजिकल टोपोलॉजी तो पता है, बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, जिस तरह से मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ. फिजिकल टोपोलॉजी मीन्स how devices are physically connected, how devices are physically connected with each other. That is a physical topology. It is a physical arrangement of the devices to on a network, including device location and cable installation. ठीक है. अब बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी का पहले डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज लाइक ए बस. यहाँ पे एक सीट है, इधर 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 एक सीट है, और बीच में से केबल जा रहे हैं. That is a bus topology. आप थोड़ा पढ़ते हैं bus topology. In bus topology, all the devices are connected to the single main cable. This cable is the main cable known as the bus and acts as the backbone of the network, which joins every computer and peripheral in the network. When I say the main cable, the main cable acts as a backbone. मेन केबल यदि गड़बड़ तो सब में गड़बड़ हो जाएंगे, तो कनेक्शन नहीं होंगे. Whole network depends on the main cable. Whole network depends on the main cable. If any problem is in the main cable, the whole network collapses, and that's why I use the term backbone. Okay. Both ends of the network have a line terminator. The the data is sent in only one direction. एक ही डायरेक्शन से चलते हैं, इधर से या इधर से, कोई भी एक डायरेक्शन. Device sends a message over the network. The message travel from the main cable, so all the devices will receive the message. मेन केबल से वो मैसेज जाएंगे और द डिवाइसेस कैन एक्सेस दैट मैसेज. अब एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. Bus topology is useful in small networks like setup in small office, requires minimum cable length, easy to connect to a computer, easy to understand. Bus topology cost very less. डिसएडवांटेज लिखे हुए, ठीक है. स्लोअर देन रिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ूंगा अभी. केबल्स हैव ए लिमिटेड लेंथ. या नेटवर्क्स गो टू स्लो इफ मोर डिवाइसेज एडेड. ज्यादा डिवाइस ऐड होंगे तो नेटवर्क स्लो हो जाएंगे. अब एक क्वेश्चन कहीं पूछ लेते, व्हाट इज बस इन कंप्यूटर. वो क्या होता है? बस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स. कोई भी कंपोनेंट के बीच में कनेक्ट करने के लिए हम बस यूज करते हैं. एग्जाम्पल ले लो, मदरबोर्ड का सेट कनेक्ट करेंगे प्रिंटर को, प्रिंटर नहीं, यू कैन से सीडी ड्राइव को, तो क्या करेंगे? बस के थ्रू से होगा. बस में हम सीडी में, जब हम सीडी को हम डालेंगे सीडी ड्राइव में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? थ्रू द बस द इंफॉर्मेशन गोज टू द मदरबोर्ड एंड इट एक्ट्स अकॉर्डिंगली. तो वो बस है कंप्यूटर में. अब स्टार टोपोलॉजी. In star topology, all the devices are connected to a central node, which can be a hub or switch. सेंट्रल नोड में कनेक्टेड है, ये देखो सेंट्रल नोड में कनेक्टेड है, हब और स्विच, और क्या हो रहे हैं? सारे एक्सेस कर रहे हैं. नोड एक्सेस सर्वर और अदर डिवाइस कनेक्टेड टू द एक्सेस द क्लाइंट. द सेंट्रल नोड, it is the server.
सेंट्रल नोड जो भी होगा दैट इज द सर्वर and all other devices are the clients. In this topology, all the devices communicate through central device. Data from the source node is first delivered in the central device. This one is the central device. Data यहाँ से इधर भेजोगे तो यहाँ पे आएगा पहले, फिर यहाँ से जाएगा जहाँ पे जाना है, through IP address or something like that. So the central device acts as the backbone of the network because the whole network depends on this central device. ये हब और स्विच यदि डाउन हो जाए तो फिर क्या होगा, कहीं से कोई भी डिवाइस डेटा नहीं जाए, कम्युनिकेशन नहीं होंगे. एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई. Central node can be upgraded easily, easy to troubleshoot, fast performance because data does not pass through every node, unlike bus topology. Adding of new node does not affect the performance of other nodes. Disadvantage क्या है? सेंट्रल डिवाइस यदि डाउन हो जाए तो फिर क्या होगा, होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड. सिंपल. होप आई एम क्लियर. ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये भी 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, पक्का रखो इससे, इसलिए मैं इसको एक रिवाइज करवा रहा हूँ. रिंग टोपोलॉजी. In ring topology, all the computers are connected in a closed loop. This topology is like a bus topology because all nodes are connected to a single cable. देखो रिंग की तरह, you can see बीच में हाँ ठीक है, तो all are connected through a single cable. हाँ, how does ring topology work? A node wants to send a message, then it uses a token to send a message. So to sending a message, token should be free on the network. Token कोई भी भेज सकता है. If a token is free, then the source node can capture the token, attach the data and the destination address to the token and then leaves the token. एक destination address token में डाल देते हैं और छोड़ देते हैं. क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो destination में पहुंच जाते हैं वो डेटा. Then token travel in the network in one direction until the token reaches the destination node. ये सारे बातें लिखना है आप लोगों को. When the token arrives the destination node, the node is removed by the destination node and the token is free to carry the next data. टोकन को फ्री कर देता है to carry the next data. Advantages क्या है? This topology is token based, so adding more devices does not affect the performance of the network. ठीक है. The main drawback is if one node fails, कोई भी एक नोड यदि फेल हो जाते हैं, सपोज ये नोड फेल हो गए तो फिर क्या होगा, then the complete network goes down. पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाते हैं. ये बात याद रखो. अब हम लोग बात करेंगे मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी क्या है? इस डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेनी अदर डिवाइसेस. ठीक है, सबको सबके साथ कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी. दिस टोपोलॉजी डज नॉट कंटेन एनी सेंट्रल डिवाइस फॉर कनेक्शन. इंस्टेड ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. तो क्या होगा, कोई भी एक नोड यदि फेल हो जाएगा तो कोई और रास्ते से वो पहुंच ही जाएगा वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 4 नोड है, तो कितने 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 चैनल्स होंगे, 4 × 4 - 1/2 n × n - 1/2 6 चैनल्स. देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 channels and 6 ways. There are two types of mesh topology. क्या है, फुल मेश टोपोलॉजी और पार्शियल मेश टोपोलॉजी. फुल मेश तो हमने देख लिया. ठीक है, इन फुल मेश ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क. पार्शियल में क्या होता है, सम नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू एवरी नोड. जैसे ये डायग्राम, सम नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू एवरी डायग्राम. एडवांटेज क्या है, इफ वन डिवाइस फेल देन देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट. एक डिवाइस फेल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होते हैं. इट कैन हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बिकॉज ऑल कनेक्शंस आर डायरेक्ट. ठीक है, कलेक्शन सारे डायरेक्ट है तो ट्रैफिक होने से कोई इशू नहीं है. न्यू नोड्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड्स. न्यू नोड भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बिकॉज डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सपेंसिव, इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट. ओके, दिस आर द डिसएडवांटेजेस. अब एक आ गया ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी uses bus and star topology together to create a network. This topology combines many star topologies using the main cable. ये देखो इसी तरह ये मेन केबल है और क्या होता है, यहाँ पे हब स्विच लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, और सब में क्या है, सब में सबको कंप्यूटर्स लगे हुए हैं. दिस इज अ ट्री टोपोलॉजी. ये डायग्राम आप लोग बना देना पेपर में.
The whole network is divided into many chunks that can be easily managed and maintained. In this topology, all the devices are connected to the main cable in the form of star topologies. हाँ, स्टार टोपोलॉजी की तरह ही बना हुआ है, सिमिलर टू द बस टोपोलॉजी की तरह, क्योंकि मेन केबल कनेक्टेड है। मेन केबल में कुछ इशू हो गया तो फिर पूरा ट्री टोपोलॉजी गोज डाउन। इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। एडवांटेज क्या है? एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी इफ एनी डिवाइस इज डैमेज, अदर हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नॉट अफेक्टेड। कोई यदि डिवाइस डैमेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे चलते रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द मेन बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। वो तो मैंने बोला, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड। केबल की बहुत जरूरत है। मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट इफ मोर डिवाइस आर एडेड। डिफिकल्ट टू मैनेज इफ द नेटवर्क इज वेरी लार्ज। मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे टोपोलॉजीज है। तो आपको टोपोलॉजीज वगैरह ये सारे पता चल गए। आप क्या करेंगे? नेटवर्क लेयरिंग प्रोटोकॉल्स, ये सारे भी पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव प्रेजेंटेड ओवर हियर। ओके, वन इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सेट। इट लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क लेयर व्हिच आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज। रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को दिमाग में रखो। इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसीलिए रिलायबल है। इट द मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। The Internet Protocol (IP), which establishes the technique for sending data packets between computers, works like TCP. TCP की तरह ही वर्क करते हैं भी। TCP क्या है? Connection oriented. अब IP is a protocol or set of rules for routing and addressing packets of data so that they can travel across network and arrive at the correct destination. correct destination पहुंचने के लिए data traversing the internet is divided into smaller chunks called packets. Packets में होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। IP information is attached to each packet. IP information पैकेट में डाल दिया जाता है। This information help routers to send packets to the right place. Every device or domain that connects to the internet is assigned the IP address, and as packets are added to the IP address attached to them, data arrives where it needed. Once the packet arrives at the destination, they are handled differently depending on the transfer protocol is used in the communication with IP. The most common transfer protocols are TCP and UDP. ये तो बाद में आ रहे हैं। TCP आपको समझ में आ गया, आईपी भी समझ में आ गया। अब यूडीपी, यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस सर्विस है, अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी आईपी सूट भी बोलते हैं इसको। नो नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन प्रायर टू द डेटा ट्रांसफर। द यूडीपी हेल्प्स टू एस्टैब्लिश लो लेटेंसी एंड लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शंस established over the network. The UDP enables to process communication. उसके बाद आता है POP, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a point where many devices share a connection and can communicate to each other. पॉइंट होता है जहाँ पे कनेक्शन शेयर करते हैं और वहीं पे कम्युनिकेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे नुक्कड़ में एक चाय की दुकान है, सारे जो फ्लैट्स के लोग हैं वहीं पे जा रहे चाय पी रहे और वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन दैट वे दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यू कैन से, वी कैन से दैट अ मैन मेड डिमार्केशन पॉइंट, यही जो मैंने बोला था। A point where the public network of a company ends and the private network of the customer begins. The point at which your broadband cable enters the house between communicating entities. उसको क्या बोलते हैं? POP, मेन पॉइंट जहाँ से हम कम्युनिकेशन करते हैं। Which consists of high speed telecommunication equipment and technology that help in bringing together people from all over the internet. Hope I am clear. उसके बाद क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP is an application layer protocol that operates as a contract for receiving emails from the mail server. ठीक है, रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर के लिए IMAP हम यूज करते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, डिजाइन्ड बाय क्रिस्पिन इन 1986 एज ए रिमोट मैसेज एक्सेस मेल बॉक्स प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज यूज्ड एज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स। ये सारे बातें लिखने हैं। This term is commonly known as the Internet Mail Access Protocol, Interactive Mail Access Protocol and Interactive Mail Access Protocol. देखो, वॉट एवर आई एम टीचिंग, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, और जो मैं लिख रहा हूँ एक भी एक्स्ट्रा बातें नहीं है, फालतू बातें नहीं है। आप लोग के एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर के बातें लिख रहे हो, देन यू डोंट गेट मार्क्स। फिर बोलोगे आपको इग्नू से मार्क्स नहीं मिलते। तो देखो मेरा कैन यू सी द नोट्स, मेरा वही पॉइंट्स है जो काम किए, जो काम की नहीं वो मैंने डाला नहीं, एक्स्ट्रा नहीं डाला है।
उसके बाद टेलनेट, टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीटाइप नेटवर्क। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल enables वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ लोकल कंप्यूटर। एक ये कंप्यूटर इधर है, ये एक लोकल कंप्यूटर के थ्रू से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस व्हिच इज गिवन बाय आईएसओ। कंप्यूटर व्हिच स्टार्ट्स कनेक्शन नोन एज द लोकल कंप्यूटर, जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं लोकल कंप्यूटर, और व्हिच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज नोन एज द रिमोट कंप्यूटर। यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? आस्क फॉर कनेक्शन, आस्क फॉर कनेक्शन, तो वो लोकल कंप्यूटर हो गया। वर्क स्टेशन क्या कहता है? एक्सेप्ट द कनेक्शन। ये डायग्राम बना लेना। When the connection is established between local and the remote computer, internet operation, whatever that is being performed on the remote computer will be displayed on the local computer। जो भी यहाँ पे होंगे वर्क स्टेशन, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टोटल अपॉन सम क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, जैसे आप लोग का एनी डेस्क बोल के एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेलनेट। ओके, एग्जाम्पल ले लो, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ये भी एग्जाम्पल ऑफ टेलनेट की है। अब है एसएमटीपी। ये जो प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। The client who wants to send a mail opens a TCP connection to the SMTP server and then sends the mail across the connection। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The SMTP server is always on listening mode. As soon as it listens for a TCP connection from any client, the SMTP process initiates a connection through port 25। पोर्ट 25 के थ्रू से इनिशिएट करते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिश करने का, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद द क्लाइंट प्रोसेस सेंड्स द मेल इंस्टेंटली, फिर इंस्टेंटली मेल पहुंच जाते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी टू टाइप्स की है, end to end method, store and forward। The end to end method is used to communicate between different organization end to end, whereas the store and forward is used within an organization। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो। end to end किस लिए होता है? between different organization, and store and forward method is used within an organization। It's क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल refers to the process that involves the transfer of files between devices over a network। The process works when one party allows another to send or receive files over the internet। ठीक है, फाइल्स भेजने के लिए यूज होता है। Originally used as a way for users to communicate and exchange information between two physical devices, it is now commonly used to store files in the cloud, which is usually a secure location that is held remotely। FTP can be used in business or individual to transfer files from one computer to another, or by websites to upload or download files from their servers। सब में FTP यूज होता है। अब होता है HTTP। HTTP is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information system that allows users to communicate data on the world wide web। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। हाइपरमीडिया मतलब क्या? मीडिया मतलब इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी टेक्स्ट, एनीथिंग इट कैन बी। सब हम भेजने के लिए यूज होते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज यूज as a request response protocol। HTTP gives users a way to interact with web resources such as HTML files by transmitting hypertext messages between clients and servers। HTTP clients generally use TCP connection to communicate with the servers। ठीक है, अब एस क्या है? सिक्योर है। ये सिक्योर नहीं थी। HTTPS क्या है? इट इज a secure version of HTTP, which is the primary protocol used to send data between a web browser and a website। HTTPS is encrypted in order to increase security of data transfer। Encrypted है। This is particularly important when users transmit sensitive data such as by logging into a bank account, email service and a health insurance provider। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब OSI में क्या होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं, उसके फंक्शंस पूछते हैं। मैंने सिंगल लाइन में मैंने कर दिए सारे, ठीक है, सिंगल डायग्राम में सब कुछ बता दिया। ये नहीं जो OSI का पूरा मैं 10-10 लाइन बता रहा हूँ एक एक लेयर्स के बारे में, उसका फंक्शंस क्या है, टाइम नहीं है। और आप लोग भी इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं करोगे, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहीं से नीचे से
इसको इसको एक निमोनिक है, जिस तरह से याद करेंगे प्लीज, पता होगा शायद आप लोग, एक बार बता देता हूँ। डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। अब प्लीज से क्या होता है फिजिकल लेयर, टी से क्या होता है डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से एप्लीकेशन लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या होता है, ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम, रॉ बिट स्ट्रीम जो होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। डेटा लिंक लेयर डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क, किस फॉर्मेट का डेटा है वो डिफाइन करते हैं डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, डिसाइड्स व्हिच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, नेटवर्क कौन सा रास्ते से जाएंगे वो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी, किस तरह का लेगा, टीसीपी लेगा यूडीपी लेगा, टीसीपी होगा तो कनेक्शन रिलेटेड होगा, यूडीपी होगा तो कनेक्शन लेस होगा। सेशन लेयर क्या है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, इनसे द डेटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा इंक्रिप्शन ऑकर्स। यूजुअल फॉर्मेट एप्लीकेशन में क्या होगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, हम पढ़ सकते हैं उसको उस फॉर्म में। तो ये सारे लेयर्स के फंक्शंस है जिसको मैंने शॉर्ट करके किया हुआ है, आप लोग को भी शॉर्ट में ही पढ़ना है, उतनी कहानियां नहीं पढ़ने, उतनी जरूरत नहीं है आप लोग को। आप IPv4 एड्रेसिंग स्कीम्स है, IPv4 और IPv6, इसकी भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। IPv4 आया था 1981, 1998 में IPv6 आया था, इससे ह्यूज डिफरेंस। ये क्या 32 बिट एड्रेस है, ये क्या 128 बिट आईपी एड्रेस है। इसमें IPv4 कितना है 4.3 बिलियन एड्रेसेस, और इसमें तो बोलना ही नहीं 7.9 × 10⁻28 एड्रेसेस। यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस मस्ट बी यूज्ड एंड मास्क्ड। मास्क, व्हाट इज मास्क, मास्क मतलब क्या होता है, आपके आईपी एड्रेस एक होते हैं, लेकिन जब आप कोई डेटा भेजते हो तो आप आईपी एड्रेस को चेंज करके आप भेजते हो, तो मास्किंग होता है, उसको पता नहीं चलता कहाँ से क्या है, ठीक है। सो दैट द अटैकर कैन नॉट अटैक द पर्सन। इस डिवाइस कैन हैव यूनिक एड्रेस, यहाँ पे क्या होता है, मास्किंग होता है, रीयूज होता है, एड्रेस को बार बार रीयूज करना पड़ता है। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल डॉट रिप्रेजेंटेशन 192.168.5.18, और यहाँ पे देखो अजीब टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, कैन यू सी हियर। यहाँ पे क्या होता है, IPv4 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेते खुद को। दिस इज, अब एड्रेस टाइप्स होते हैं, क्लास A B C D E, इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन हम वी आर नॉट स्टडिंग डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने एड्रेस टाइप्स आपको पता होना चाहिए ABCD, इसका न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे पेपर में, तो हम लोग छोड़ दिए उस न्यूमेरिकल को। अब हम लोग चलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, लेकिन मैं कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे नेटवर्किंग की सिक्योरिटी की इतनी सारी बातें हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है, कौन कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, कैसे है, ठीक है। तो उसका बारे क्या बोले, उसको यदि आप जानना चाहते हो डिफरेंट टाइप्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, आपको एटलीस्ट कोर कॉन्सेप्ट पता हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, द मोस्ट फंडामेंटल एरियाज ऑफ नेटवर्किंग दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू नो। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, how your data gets to its destination and helps to make that process as smooth as possible। डेस्टिनेशन जा रहा है और जाते हुए कितना स्मूथली जा रहा है, दैट राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज डिटरमाइंड बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप का है, स्टैटिक और डायनेमिक, ओके। स्टैटिक के हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, डायनेमिक हम करते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, मैन्युअली असाइन करते हैं द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क, इट ऑफर्स मोर सिक्योरिटी टू द नेटवर्क। मैन्युअली करेंगे तो सिक्योरिटी भी होगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, no overhead on a router CPU, no usage bandwidth between links, only the administrator can add routes। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर सब कुछ है। अब डिसएडवांटेज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर शुड नो हाउ ईच राउटर इज कनेक्टेड, पूरा कनेक्शन उसको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को, तभी भेज सकते हैं ना। नॉट एन आइडियल ऑप्शन फॉर लार्ज नेटवर्क एज इट इज टाइम इंटेंसिव, लार्ज नेटवर्क में ये फेल हो जाता है क्योंकि टाइम बहुत लगती है करने में। When the link fails, all the network goes down, which is not feasible in small networks।
लिंक एक बार फेल हो जाए तो सारे डाउन हो जाते हैं, तो हमारे लार्जर नेटवर्क में दिस इज नॉट फिजिबल। आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? डायनेमिकली डायनेमिकली हम ये करते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है, automatically helps routers add information to the routing tables from connected routers. These protocols also send out topology updates where the network changes its topological structure. सब कुछ भेजते हैं डायनेमिक राउटिंग से। एडवांटेज क्या है? इजियर टू कॉन्फ़िगर इवन और मोर इवन ऑन मोर एक्सटेंसिव नेटवर्क, इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है। इट विल डायनेमिकली एबल टू चूज अ डिफरेंट राउट इफ अ लिंक गोज डाउन। डायनेमिकली वो एक लिंक खराब हो गया दूसरे लिंक से जाएंगे। एग्जांपल ले लो ना, आप लोग जैसे जीपीएस लोकेशन ऑन करते हो और आप कार या बाइक लेके जा रहे हो, एक रूट में सपोज रेड हो गया, तो ऑल्टरनेटिव रूट ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, डायनेमिक ही कर रहे हैं। तो ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल ही तो है और कुछ नहीं है। इट हेल्प्स यू टू लोड बैलेंसिंग बिटवीन मल्टीपल लिंक्स। डिसएडवांटेज क्या है? अपडेट्स आर शेयर बिटवीन राउटर्स, सो इट एज्यूम्स बैंडविड्थ, थोड़ा सा डेटा लेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स पुट एन एडिशनल लोड ऑन द राउटर, सीपीयू और रैम, थोड़ा सा लेगा ही, क्योंकि प्रोटोकॉल इट्स नॉट इजी डायनेमिकली करना, फिर रीराउट करना, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, only dynamic routing uses routing protocols which enable routers to dynamically discover and maintain routes, calculate routes, distribute routing updates to other routers, reach agreement with other routers about the network topology. ये सारी चीज से डायनेमिक राउटिंग में ही पॉसिबल है। अब स्टैटिक प्रोग्राम्ड राउटर्स आर अनेबल टू डिस्कवर राउट्स और सेंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर राउटर्स, वो नहीं कर सकते। दे सेंड डेटा ओवर राउट्स डिफाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करेगा वही जाएगा, वही होंगे। अब हम बात करेंगे स्टब नेटवर्क इज ऑल्सो, बिकॉज इट इज द डेड एंड ऑफ द नेटवर्क, उसको स्टब नेटवर्क बोलते हैं। पूछते हैं कभी कभी, देयर इज ओनली वन रूट इन एंड वन रूट आउट, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी reached using static routing, thus saving valuable। ये स्टैटिक राउटिंग में हम लोग स्पेशली यूज करते हैं स्टब नेटवर्क, रूट इन रूट आउट। ठीक है, आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, देयर आर थ्री टाइप्स। क्या क्या है? डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट कहता है हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर क्या है? लेट अस कंप्यूट द बेस्ट पाथ फ्रॉम इंफॉर्मेशन पास्ड टू देम फ्रॉम नेबर्स, नेबर्स से जो पास करेंगे। लिंक स्टेट क्या होता है? राउटर्स each have a copy of the entire network map and compute best routes from this local map, उस लोकल मैप से वो बेस्ट रूट्स बनाते हैं और आगे चलते हैं। और डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है? कंप्यूट द बेस्ट पाथ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन पास टू देम फ्रॉम नेबर्स, नेबर से जो भी है उसके बाद उसको अपडेट करके वो बेस्ट पाथ ढूंढेंगे। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स का टाइप्स क्या है? एक स्टैटिक होता है, एक डिफॉल्ट, एक डायनेमिक। डायनेमिक में चलते आईजीपी ईजीपी। डिस्टेंस वेक्टर में क्या है? आरआईपी, आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल, आईजीआरपी। लिंक स्टेट में दो है, हाइब्रिड में ये वाला है, और पाथ वेक्टर में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये सारे के एब्रिविएशन मैंने दिया हुआ, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। आईजीपी क्या होता है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट, आईएसआईएस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ईजीआर एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब क्या होता है? ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज क्लासिफाइड इन डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, क्लासफुल और क्लासलेस प्रोटोकॉल। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस वेक्टर सेंड्स एंटायर राउटिंग टेबल ड्यूरिंग अपडेट्स। आप अपने फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए, बच्चे तो इतनी कम है। ठीक है, इट इज फॉर यू ओनली। ठीक है, एंड आप यदि ये कर लोगे तो ये पूरी जो ये है आपकी जो बुक है, उस बुक से हमने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही उठाए, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट्स नॉट फ्रॉम ब्लॉक 2, ऑल आर फ्रॉम ब्लॉक 1, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे। आप डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के बारे में बात करें, डिस्टेंस वेक्टर सेंड्स एंटायर राउटिंग टेबल ड्यूरिंग अपडेट्स। लिंक स्टेट में क्या? ओनली प्रोवाइड्स लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन। डिस्टेंस वेक्टर में क्या? सेंड्स पीरियोडिक अपडेट्स एवरी 30 to 90 सेकंड्स। इसमें क्या? लिंक स्टेट में यूज ट्रिगर्ड अपडेट्स। यहाँ पे क्या? ब्रॉडकास्ट अपडेट, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, सबको पता चलता है, सारे नोड्स को पता चल जाते हैं डिस्टेंस वेक्टर में। यहाँ पे क्या था? मल्टीकास्ट अपडेट। ये लूप्स में वल्नरेबल है डिस्टेंस, यहाँ पे कोई ऐसे रिस्क नहीं है। डिस्टेंस वेक्टर आरआईपी आईजीआरपी, और लिंक स्टेट में क्या है? ओएसपीएफ आईएसआईएस।
ISIS क्या है? इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, दैट इज ISIS। अब ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बस नेटवर्किंग में ही पढ़े हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया जैसे ट्रांसमिट करेंगे, उसमें गाइडेड और अनगाइडेड होता है। गाइडेड में क्या होता है? ट्विस्टेड केबल, तार होते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सारे आपको पता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किए हैं इस लेक्चर में, हमने छोड़ दिए ये। अनगाइडेड में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किए हैं। अब गाइडेड में क्या है? फीचर्स क्या था? हाई स्पीड, सिक्योर, यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ये गाइडेड मीडिया है। अब अनगाइडेड में क्या है? इट इज रेफर्ड टू वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, कहीं से भी जा सकते हैं। नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। फीचर्स क्या है? सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, ठीक है, एयर के थ्रू जाते हैं, लेस सिक्योर, यूज फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। अब इसमें अनगाइडेड मीडिया में 3 टाइप्स है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ओके। अब रेडियो वेव क्या है? दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स। वो रेडियो, जैसे रेडियो आप लोग सुनते हो, FM, AM, उस तरह के रेडियो चैनल्स, ये सारे तो क्या होते हैं? दैट कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। द सेंडिंग एंड द रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी नॉट बी अलाइंड। फ्रीक्वेंसी रेंज दिया रहता है 3 किलो टू 1 गीगाहर्ट्ज। FM, AM, FM radios and cordless phones use radio waves for transmission. फर्दर कैटेगरी टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट, वो जरूरत नहीं है, सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट फोन क्या होता है? आपका यदि चाहे टावर्स नहीं रहे, सैटेलाइट फोन, थ्रू सैटेलाइट यू कैन टॉक टू एनीबॉडी, वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, तो इसके बारे में उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रेडियो वेव्स का डेफिनेशन ये सारे लिखोगे आप। माइक्रोवेव, इट इज a line of sight transmission that is sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इंफ्रारेड क्या है? इट इज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे आप लोग टीवी का रिमोट, वही है इंफ्रारेड, ठीक है। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स, दिस प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम्स। फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेट्राहर्ट्ज। इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एप्लीकेशन एंड सर्वर सिक्योरिटी, इसमें हाँ, इसके अंदर 2 टाइप्स के अटैक्स, एप्लीकेशन सर्वर सिक्योरिटी के अंदर 2 टाइप्स के अटैक होता है। एक होता है एक्टिव अटैक, एक होता है पैसिव अटैक। एक्टिव मतलब क्या होता है? जैसे मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, तो इंस्टेंटली बीच में हम डेटा को चेंज कर दिए, जो भी इंफॉर्मेशन भेज रही इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, दैट इज एक्टिव अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस, ये हो गया। रिप्ले, ये सारे क्या हो गया? नॉन रेपुडिएशन, ये सारे क्या हो गया? एक्टिव अटैक हो गए। पैसिव अटैक क्या है? पैसिव अटैक इज नेटवर्क अटैक इन विच सिस्टम इज मॉनिटर्ड। पहले वो देखेंगे, देख के ऑब्जर्व करके कॉपी करेंगे, मैसेजेस कॉपी करेंगे, और उसके बाद में उसको लेके अटैक करेंगे। तो दोज आर ऑल पैसिव अटैक्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अटैक इज टू गेन information about the targeted system. For example, it releases message content from emails. It can take various forms like traffic analysis, moves to and from the target system, eavesdropping. ये टेक्निकल टर्म्स आप लोग को लिखना है। ईव्सड्रॉपिंग, अटैकर क्या करते हैं? इंटरसेप्ट, सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद अटैक करते हैं। स्पाइंग, फुटप्रिंटिंग, टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम इन्फॉर्मेशन एंड ईमेल आईडी। वार डाइविंग, डिटेक्ट्स vulnerable Wi-Fi network by scanning from the nearest location or using GPS with portable antenna dump। इसको क्या बोलते हैं? वार डाइविंग। ये वाले को क्या बोलते हैं? वार ड्राइविंग क्या होता है? डिटेक्ट्स vulnerable Wi-Fi networks by scanning from the nearest location or using GPS with portable antenna। और dumpster diving, ये क्या होता है? Attacker seeks information stored on useless devices or using passwords। ये टेक्निकल बातें आप लोग को याद रखना है। एक वार ड्राइविंग, एक होता है डंपस्टर डाइविंग। अब कॉन्सिक्वेंसेस, एप्लीकेशंस तो बहुत सारे आप लोग इंस्टॉल करते हो। यदि अनसिक्योर्ड एप्लीकेशन है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर ले, क्योंकि ये भी आ सकता है टॉपिक, ठीक है। हम लोग लैप मोबाइल लेके घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है जो अनसिक्योर्ड एप्लीकेशन सपोज आपने इंस्टॉल कर लिया तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो भी पेपर में आ सकते हैं। एन एप्लीकेशन vulnerability is system flaw or weakness in an application that could be exploited to compromise the security of the application. Once attacker has found a flaw or application vulnerability and determined how to access, the attacker has the potential to exploit the application vulnerability to facilitate a cyber crime। वो सारे डेटा बंदे के ले लेगा,
यदि कहीं कहीं भी यदि अनसिक्योर्ड एप्लीकेशन कुछ भी है तो वो सारे डेटा वहां से उठा लेंगे, सारे डेटा ले लेंगे। जब भी आप ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, बोलते नहीं है इट एक्सेस योर्स, ये क्या बोलते हैं उसको, सारे जो लोगों के ये नंबर्स, फोन नंबर्स, दे कैन कैच दो नंबर्स, ठीक है, दे कैन टेक ऑल वाइटल इन्फॉर्मेशन, फोटोज भी वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें अनसिक्योर्ड एप्लीकेशन के रिस्क है, ठीक है। सिक्योर्ड एप्लीकेशन में भी यही होता है। यदि आप ऐप कोई अच्छा एप्लीकेशन है, उसको आपने बहुत दिनों से अपडेट नहीं किए, तो उसके अंदर भी अटैकर घुस सकते हैं और यही सारे हरकतें कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्राइम्स होंगे यहाँ पे। Most severe attacks can expose the most sensitive of data or gain unrestricted access to the core backend systems on which all the vital applications run. एप्लीकेशन रन करेंगे और सारे डेटा वो एक्सेस कर लेंगे, बैंक की इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इट कैन एक्सेस। तो आप लोग को अपलोड भी अपडेट भी करना पड़ेगा अपने ऐप को। अपडेट करना मतलब सिक्योरिटी भी अपडेट होता है उसमें। अब डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। Application security, it is a type of security provided to apps simply by finding, fixing, and preventing security vulnerability. Network security क्या है? Provided to network from unauthorized access and risk. Application security, its main goal is to make app more secure and prevent data or code from being stolen. Network security क्या है? Its main goal is to take physical and software preventive measures to protect underlying networking infrastructure. अब क्या है? It makes application more secure, keep confidential information safe and secure, reduces risk from both internal and third party sources, protects sensitive data from leaks, etc. और इधर क्या नेटवर्क, इट मेक्स network more secure, protecting proprietary information, reduce risk of data loss, theft and sabotage, build trust, etc. टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं? SAST, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें याद रखो। टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं? SAST, DAST, IAST। यहाँ पे नेटवर्क एनालिस्ट में क्या, एयर क्रैक, मेटास्प्लॉइट, वायर शार्क, ये सारी चीजें, ये सब बातें याद रखो, इंपॉर्टेंट टूल्स। ये सारे में मार्क्स आपको दिलाएंगे और आप लोग को पता भी होना चाहिए सर, ये सारे आप लोग थोड़ा एक बार एक्सप्लोर भी करना है ये सारे टूल्स। अब क्या है? इट रिलाइज ऑन हाउ एप्लीकेशंस ऑपरेट एंड लुक्स फॉर एनोमलीज इन दोज एप्लीकेशंस। अब इधर क्या नेटवर्क में, इट रिलाइज ऑन हाउ एबिलिटी टू स्कैन ट्रैफिक और इंटरफेस नेटवर्क। तो ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा खुद ही पढ़ो, ठीक है। यू कैन गो थ्रू इट। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, एडिंग, टेस्टिंग सिक्योरिटी फीचर्स विद इन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। नेटवर्क सिक्योरिटी, इट इज प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्टिविटी अक्रॉस गिवन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे टॉपिक्स करके आप लोग ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स सारे आप लोग दिमाग में डालो और जरूरत पड़ता है आप लोग ये नोट इट डाउन। अब अटैक्स और वल्नरेबिलिटीज के, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होते हैं, या हम लोग पहले भी कोई ना कोई कोर्स में हमने पढ़े हैं तो हम छोड़ दे रहे हैं। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ये हमने नहीं पढ़े, इसलिए मैंने ब्रोकन ऑथेंटिकेशन टर्म कर लिया यहाँ पे। A web application can have the weakness of allowing the intruder to either encapsulate or bypass the validation methods being used in these systems. This can happen due to many reasons. कैसे? Broken, the credentials of the users are not encrypted when saved. Encrypted नहीं होने से तो ले लेंगे। Easy to predict login credentials. Exposed session IDs in the URL. Session IDs are vulnerable to session fixation attacks. No timeout session value after logout. Even after login, session IDs are not changing, are not interchanging. Okay. Unencrypted transmission of passwords, session IDs and other credentials. इस ये होता broken authentication. ठीक है. It is due to our mistakes only, not due to anybody else's. अब XML इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिकली समझे। Attacker sends the server an improperly formatted XML query और कमांड टू एग्जीक्यूट। कोई भी एक फालतू एक फॉर्मेट में भेज दिया उन्होंने। सर्वर, अब वेब सर्वर है, अब वेब सर्वर भेज रहा डेटाबेस में। सर्वर सेंड्स द अनवैलिडेटेड यूजर इनपुट टू द डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है? द डेटाबेस सेंड्स बैक रिस्पॉन्स विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन और एग्जीक्यूट द कमांड। कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। द सर्वर सेंड्स द अटैकर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो ये क्या है? ये एक्सएमएल इंजेक्शन है, अटैक है। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम में बनाओगे, ठीक है।
XML injection क्या sometimes called XML code injection is a category of vulnerability where an application doesn't correctly validate or sanitize user input before using it in an XML document or query. वैलिडेट जब नहीं करता एप्लीकेशन तभी ये सारी चीजें होते हैं. XML which stands for, आप वैलिडेट मतलब आपको समझ आए, जैसे यूजर आईडी इन्होंने बोल दिया, या सपोज सोच लो एम्प्लॉय आईडी ओनली डेसिमल है, ठीक है, हमने सपोज कैरेक्टर्स डाल दिए, तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे ना वैलिडेशन लगा रहेगा. यदि आप कैरेक्टर डालोगे तो ऑटोमेटिकली बोलेगा एंटर द वर्ड्स का, एंटर इन न्यूमेरिकल फॉर्म. और यदि वो वैलिडेशन नहीं लगा रहेगा तो कुछ भी डालोगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अंदर, ठीक है. उसके बाद में जो भी आउटपुट आएगा लेकिन ऑटोमेटिकली वो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे. दैट इज वैलिडेशन. XML stands for extensive markup, is the language format that's commonly used for structuring, storing data. Having XML injection database within your app means that bad guys will have free reign to cause whatever damage they can do to your XML documents. XML injections are also a subcategory of injection attacks in general. Bad guys use injection attacks to exploit weakness in your application and front-end services that allow them to deploy malicious payloads and gain access to your sensitive stored data. अब XML injection क्या होता है? Enable unvalidated user data to construct queries that allow a attacker to read or modify XML documents or execute commands in a XML enabled database. कुछ भी अनवैलिडेटेड यूजर डेटा भेज देते हैं और वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं सर्वर, और फिर उसको क्या करता है, उसको आगे डेटाबेस को भेज देता है. दिस एनेबल्स द अटैकर टू गेट अराउंड योर एप्लीकेशन फ्रंट एंड टू गेन एक्सेस टू द दूसरी स्टोर डेटा. डेटाबेस में चला जाएगा तो वो डेटा तो ले ही लेगा. दिस थिंग बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वल्नरेबिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन इनपुट फील्ड्स. आपने एम्प्लॉय आईडी बोला, आपने एबीसीडी करके दे दिए और वो एक्सेस कर लिए, ठीक है, वैलिडेशन लगा हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस वो वल्नरेबिलिटी है, वहां से क्या होगा, अटैकर अटैक कर देगा. तो दैट्स व्हाट आई सेड, वही यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये. अब टाइप्स ऑफ सर्वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वर्स? एक होता है एप्लीकेशन सर्वर. ये क्या होता है? दिस सर्वर्स कनेक्ट क्लाइंट्स टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू वर्चुअल सर्वर कनेक्शन, ठीक है. दिस अलाउज यूजर टू बाईपास डाउनलोडिंग डेटा टू देयर ओन हार्डवेयर इन ऑर्डर टू एक्सेस एप्लीकेशन. हार्डवेयर को डाउनलोड करने जाते नहीं, डायरेक्ट जाओ और एक्सेस कर लो. एप्लीकेशन सर्वर कैन इफेक्टिवली होस्ट large amounts of application data at to many users at once, making them ideal for business, ठीक है. Client server, the client server model is a distributed applications structure that partitions tasks or workload between the providers of a resource or service called servers and the service request called client. In the client server architecture, when the client computer sends a request for data to the server through the internet, the server accepts the requested process and delivers the data packets requested back to the client. Clients do not share any of their resources, ठीक है, और सब कुछ आ जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब एटसेट्रा. अब होता है एफटीपी सर्वर. एफटीपी सर्वर्स आर यूज्ड टू रीलोकेट फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, upload files, move from your computer to the server while downloaded files are extracted from the server onto your device. ये सारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है. डेटा ले रहे, डेटा भेज रहे, इस तरह की बातें. अब होता है मेल सर्वर. This stores and delivers mails for clients through email service platform. Because mail servers are set up to continually connect to a network, individual users can access their email without running any systems through their own devices. A proxy server. Proxy server acts as a bridge between a host server and a client server. Proxy server sends data from a website to a computer IP address after it passes through the proxy server. Proxy server through से. This practice adds a layer of security since the information is requested and transferred from the source to the proxy server and never directly from the client from a client to another user. पहले proxy server, उसके बाद जाएंगे वहाँ. Server can filter out various harmful internet entities. उसको भी वो filter कर लेंगे. और सर्वर थ्रेड्स क्या क्या है? डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस, आप लोग पढ़े. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी आपको पता है. ये क्या? MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक. ये सब हमने करवा चुके, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे. फिशिंग, फिशिंग भी हमने पढ़े. जैसे होते एक जाल होते हैं, एक नेट होते हैं. आप कोई तालाब या कोई वहां पे डालते हो तो क्या बहुत सारा मछली आप पकड़ लेते हो,
ठीक है, तो दैट इज फिशिंग। उसी उसी कौन से उसी को लेके हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मछली नहीं होती, यहाँ पे लोग होते हैं जो फिशिंग अटैक में फंसते हैं। अब फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक टाइप्स है, फिशिंग टेक्निक्स इतनी सारे टाइप्स है, ये भी आपको जानना जरूरी है। स्टैंडर्ड ईमेल फिशिंग, ये तो पता ही, ईमेल सबको भेजेंगे, ठीक है, टू मिलियंस ऑफ पीपल फॉर द सोल पर्पस ऑफ डूपिंग एंड स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एक होता है मैलवेयर फिशिंग, like email phishing. Users are encouraged to click on the links or download adware to install on the devices. It is the most persistent form of phishing attack. लिंक्स दे देते हैं और लिंक्स को कुछ लिख देंगे, जब मीन सपोज यू कैन से जब मीन्स क्लिक हियर एंड यू विल गेट ए लैपटॉप फॉर 3000 रुपीज, क्लिक ऑन द लिंक। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा एंड ऑल द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर देयर। एक होता है स्पीयर फिशिंग, इज टारगेटेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जाने के लिए ये स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज तब प्लान ऑन स्टीलिंग डेटा फॉर मेलिशियस पर्पस। हाँ, पर्टिकुलर बंदे के या ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा तो मेलिशियस पर्पस के लिए ही होंगे, चोरी करने के लिए डेटा। As most phishing attacks are directly towards the wide net, spear phishing on the other hand is highly targeted and very well researched. वेरी वेल रिसर्च, ये सारे बातें लिखोगे, रिसर्च करके ये फिशिंग यूज करते हैं। फिर इस टाइप का फिशिंग, स्पीयर फिशिंग। उसमें स्मिशिंग, malicious short links are delivered to smartphone users distinguished as lottery winners, disguised as lottery winners, sorry, balance reduction or other account notice by SMS। लॉटरी विनर्स इसको बोलते हैं स्मिशिंग। सर्च इंजन फिशिंग, a fake website is designed to collect personal information and redirect payments. These sites appear as paid advertisements on top of our searches or organic search results. Or the phishing, voice phishing, malicious caller alleging himself to be from tech support or government agency or other organization trying to extract personal financial information, उसको phishing बोलते हैं। Farming, legitimate web traffic is rerouted to a fake page with the user getting a sniff of it, where the attackers easily extract the user's data and sensitive information. It's also called DNS poisoning. इसको DNS poisoning भी बोलते हैं, दिमाग में देखो, फार्मिंग को। वो होता है क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग क्या होता है? ए पर्सन's email account is compromised. Some minute changes are made to the user's current email by substituting a genuine link, attaching or any other entity with a malicious one, and then transmitting it to the same person's contacts to spread the infection. ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके हम क्या इन्फॉर्मेशन भेजने लगते हैं इधर उधर, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोन फिशिंग। एक होता है मेलवर्टाइजिंग, इसको बोलते हैं मेलवेयर, मेलिशियस कोड एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं इसको। मोस्ट एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ अटैक डन व्हेन डिजिटल और एड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट्स नॉर्मल लुकिंग एड्स विद मेलिशियस कोड एम्बेडेड विद इन देम, दस लीडिंग टू फिशिंग। नॉर्मल ऐड लगेगा लेकिन उसमें क्या होता है, सारे फिश ये होते हैं उसको, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। स्टेप्स ऑफ सर्वर सिक्योरिटी, ये तो समझ आ गया आप लोग को। तो आप लोग को जो भी टॉपिक्स, जो जो भी ये पेपर है, ठीक है, MSc 29, उसका जो पार्ट 1 ब्लॉक 1 का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन शॉर्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड ओवर हियर, ठीक है, इन दिस लेक्चर। अब स्टेप्स फॉर सर्वर सिक्योरिटी क्या क्या है? सिक्योर सर्वर कनेक्टिविटी, ठीक है, सर्वर को सिक्योर करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें हम लेते हैं ताकि माई सर्वर इज सिक्योर, ओके, सिक्योर्ड। फॉर बेटर एंड रिलायबल कनेक्शन कम्युनिकेशन, दिस इज सिक्योर चैनल, SSH, yeah, protocol is one of the best ways to establish a safe connection, ठीक है। all the data being communicated is encrypted over the network। समझ आ गया शायद आप लोग को। अब SSH है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिक्योर शेल, ठीक है। अब यूजिंग SSH की ऑथेंटिकेशन एज ए सब्सटीट्यूट फॉर पासवर्ड, वी कैन यूज SSH ऑथेंटिकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका वो साइज बहुत बड़ा होता है, 617 डिजिट पासवर्ड होते हैं, ठीक है। उस तरह का भी हम पासवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द सर्वर बाय द अटैकर। आप सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
यूजिंग FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पता है, साथ में एस लगा दो, या SFTP सिक्योर वाइल ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रॉम द सर्वर, तो क्या हो गया, सिक्योर हो गया, एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्ट हो जाता है डेटा सारे through different algorithms, you can say. FTPS or STPS offer strong defense via authentication, which FTP does not provide. अपडेट एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर रेगुलरली, ये जो मैंने बातें पहले बोला, रेगुलरली अपडेट करना बहुत जरूरी है. टाइम द अटैकर्स इन्वेंटेड न्यू malware and other attacking techniques, so it's best to update all the requisite software on the server regularly. Hackers try to explore any weakness in the software from any angle. That's why this software tends to get updated now and then. तो सॉफ्टवेयर करना जो अपडेट करना जरूरी है. अननेसेसरी सर्विसेज, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो या विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो अननेसेसरी जो सर्विसेज सॉफ्टवेयर है वो सारे कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. देखो ये लिखा हुआ, सस्टेन ए ओनली द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू कीप आवर सर्विसेज रनिंग. It decreases the so-called attack vector. As a practitioner, you should avoid the installation of unnecessary software. It depends on the type of OS used for the server. A Windows OS server ought to have only the components deemed necessary. ठीक है, तो जो आपको जरूरत है वही आप करो. मिनिमम मिनिमम इंस्टॉलेशन, ज्यादा करने की जरूरत नहीं. उसमें क्या होगा, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आएंगे, उसके बीच में अटैकर भी आएंगे. ठीक है, दैट कैन अटैक, मैलिशियस कोड्स भी आएंगे. Firewall, this is very important. Configuring the server and the firewall is essential in stiffening your server security. It restricts the and only allows explicit vital connections, barring other services and unknown access to the server. ठीक है, अननोन बारिंग अदर सर्विसेज, सारे सर्विसेज नहीं एक्सेस करने देंगे फायरवॉल. दैट इज, तो फायरवॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सर्वर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, इसमें क्या, एक सिंप्लिसिटी. द सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल. क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ मेनी अटैक. कॉम्प्लेक्स जितना करोगे उतना अटैक होने का चांस है. सीधा रखोगे तो समझ में आएगा कि सामने से अटैक आ रहा है, इधर से अटैक आ रहा है. कॉम्प्लेक्स करोगे तो समझ ही नहीं आएगी कहाँ से कौन सा अटैक कैसे आ रहे हैं. Number to fail safe. There should be a presumption that an attacker is inevitable. Attack is inevitable. Attack होगा ही, वो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा. Under threat or any other scenario, it should also fall secure if the system securely if the system fails. ठीक है, सिस्टम फेल होने में सिक्योर होना चाहिए मेरा डेटा. These type of fake attacks must be executed even before the deployment by the team in the testing phase itself. क्या करते हैं, माने जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको ना उसके ऊपर अटैक करना जरूरी है, देखने के लिए जो उसमें कोई क्या 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 अटैक्स हो सकते हैं. ठीक है, और अटैक होगा तो एटलीस्ट माय डेटा इज सिक्योर. डेटा इज नॉट बीइंग, मैंने क्या बोला, डेटा इज नॉट टेकन बाय द अटैकर, डेटा इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द अटैकर. ठीक है, तो उसके पास ना चला जाए. ठीक है, तो फेल सेफ, फेल हो गया लेकिन स्टिल माय डेटा इज सेफ, उसको फेल सेफ बोलते हैं. सिंपल. Separation of privilege. If all the users and systems acting as servers or proposers are all the privileges available, then one has to forget security. सबके पास सब परमिशन है, सब फंक्शंस है, किसी के पास ये नहीं, रीड राइट एग्जीक्यूट, सबके पास रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो क्या होगा, तो सिक्योरिटी बोल के कोई चीज रहेगा ही नहीं. सबके पास एक डिग्री ऑफ सर्टेन डिग्री इट शुड बी गिवन सिक्योरिटी. जैसे किसी के पास रीड है, किसी के पास राइट है, किसी के पास एग्जीक्यूट है, किसी के पास रीड राइट एग्जीक्यूट है. बट जो जिस पोजीशन में है उसको उतना ही एक्सेस दो. सारे एक्सेस डेटा को दोगे तो मुश्किल होगा, और सबको सब दे दोगे तो फिर तो सिक्योरिटी रहेगी, कौन कहाँ से डेटा मीन्स स्टील कर रहे हैं या फॉर और डीपिंग द डेटा. ठीक है, तो वो पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, least privilege. It creates a standard where each task process and user has to be granted minimum required rights while performing the jobs. ये तो मैंने पहले बोला, minimum required rights होते हैं. This helps in securing the systems insignificantly, as if any of these items are compromised, and the scope of the damage is limited to those currently resources only. इसके बाद डिफेंस इन डेप्थ, साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारा आप लोग देखोगे. इट्स ऑल थ्योरी. ठीक है, अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लायंसेस. अब पर्सनल डेटा अपना डेटा है, उसको क्या, उसका क्या मेरा हक है, व्हाट आई कैन डू विद माय डेटा, ऑल दिस थिंग्स वी शुड नो. उसके बहुत लॉज और एक्ट्स भी है 2019 में हमारे इंडिया के अंदर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है यहाँ पे. Data privacy describes the practices
which ensures the data shared by the customers is only used for its intended purpose. जिस यूज के लिए डेटा को लिया गया है उसी पर्पस के लिए वो यूज किया जाए. In a world with ever growing data, privacy is a crucial topic to scrutinize. Information privacy is individual's right to control how his personal information is collected and used. अब उसकी इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदे का इंफॉर्मेशन कैसे यूज होगा वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इफ इट डजंट वांट टू यूज दैट द कंपनी शुड यूज, और ठीक है, तो इट शुड नॉट बी यूज्ड. एट द हाईएस्ट लेवल प्राइवेसी इज द right of a citizen to be left alone or freedom from interference or intrusion. Privacy is most important. Data privacy is citizens' right to control how their personal information is collected and used. Data protection is a subset of privacy. Okay, protecting your data and sensitive information is the first step to keeping your data private. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी इज फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी एक्सेस. थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं करना चाहिए. Malicious attacks or exploitation. It is set up to protect personal data using different methods and techniques to ensure data privacy. Data security measures the integrity of the data, meaning data is accurate, reliable, and available to the authorized parties. डेटा सिक्योरिटी मेथड्स क्या होता है? एक्टिविटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, ब्रीच रिस्पॉन्स, एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ये क्या है? डेटा सिक्योरिटी मेथड्स. Privacy and data protection should have some of the following fundamental principles. क्या है? एक है legality and transparency. Personal data cannot be worked upon without the user's consent or in any unlawful manner. तो legality transparency होना चाहिए. Minimization and limitation. Only the required data for a particular activity is to be attained. Similarly, it is to be processed only for what it is accessed in the first place. ठीक है, जिसके लिए यूजर हो उसी में यूज हो बस. डेटा रिटेंशन. The data queried for some process must be discarded when that process execution is over. जब प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर दो. इट कम्स अंडर द रेगुलेटरी रिकॉर्ड रिटेंशन requirements as the data when not required is not allowed to be stored where it has no direct relevance. रखो मत उसको, ये कर दो, डिस्कार्ड कर दो, डिलीट कर दो. For security, safeguards in a company have to be set in place for data protection against unsanctioned or forbidden data processing, unintentional loss, destruction, or harm attained via inappropriate technical and organizational measures. Data transfer outside borders. Borders मतलब outside country you can say. Effective due diligence and various regulatory controls have to be set in beforehand while transmitting data to a territory outside the organization's country. अब इंडिविजुअल राइट क्या क्या है? हमारा भी तो राइट है, हमारा डेटा पूरा इंटरनेट पे है, तो आई हैव ऑल्सो सम राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. कोई भी डेटा कोई यूज करे तो इट शुड बी इन्फॉर्म टू अस फर्स्ट. Right to access to personal data. If anybody wants to access the personal data or copy the data, he should ask permission from us lawfully, and then they can access it. Right to rectification. Every individual has the right to rectify their inaccurate personal data. यदि कोई inaccurate data है उसको क्या हम rectify भी कर सकते हैं, वो हमारा हक है. That is our right. Individuals can also have their incomplete personal data completed, though it depends on the sole purpose of data processing. राइट टू इरेजर, हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं अपने डेटा को. इट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू बी फॉरगॉटन. ये बात याद रखो, राइट टू बी फॉरगॉटन. दिस राइट विल ओनली अप्लाई टू द डेटा स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ द रिक्वेस्ट. राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी. सेम पोर्टेबिलिटी होते हमारा राइट है, तो डेटा पोर्टेबिलिटी है. डेटा हम कहीं से कहीं भी रख सकते हैं. allows individuals to obtain and reuse personal data across different platforms and services for their purposes. कहीं भी रख सकते हैं. Nobody can force us that you cannot copy or move the data to somebody or somewhere else. An individual can move, copy, or transfer personal data safely and securely without affecting its usability. This enables individuals to take advantage of applications and services that can use the data to find a better deal or help them understand their spending habits. The right only applies to information an individual has provided to a controller. Right to object. हमारा डेटा कोई एक्सेस कर रहा, we can stop or prevent anyone from processing the data.
हम राइट दैट इज वो राइट हमारा है। ओके, उसको राइट टू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है? डेटा पूरा फैला हुआ है पूरा इंटरनेट में, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। इंटरनेट में होगा तो ऑनलाइन है, और ऑफलाइन मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, प्रिंट आउट्स, जो हार्ड कॉपी है, इन द फॉर्म ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन गेट। तो वहां से हम कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, दैट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। देखो क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड और अदरवाइज पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज, वहां से डेटा कलेक्ट करें। यहाँ से अटैकर भी कलेक्ट करते डेटा। OSINT operations, whether practiced by IT security, malicious hackers or state-sanctioned intelligence operative, use advanced techniques to search through the vast haystack of visible data. डेटा तो बहुत है, उसी के अंदर से हमें निकालने हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सैंड के बीच में एक सुई है, उसको ढूंढना। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस तरह की चीजें। ठीक है, to find the needles they are looking to achieve their goals and learn information that many don't realize in public। सबको नहीं पता होता। तो उसके लिए हमारा डेटा साइंस को कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे, डेटा क्लीनिंग, उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये सारे बातें भी आते हैं। हमारा डेटा माइनिंग भी आएंगे एक टॉपिक, ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, इट इज प्राइमरली यूज्ड इन नेशनल सिक्योरिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। Intelligence agencies use OSINT for so-called targets of interest. They tend to keep a data tab on various events, various types of chatter on multiple platforms, equipment such as weapon systems and people. Hackers use it to identify technical vulnerabilities and human targets to extract money by using phishing and other social engineering strikes. To counter this, OSINT helps security teams arrange similar techniques to uncover and close down this weakness. ठीक है, हैकर्स तो अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन OSNIT क्या करेंगे? वो सब वीकनेस को खत्म करने का भी कोशिश करेंगे। दे आर अगेंस्ट द अटैकर्स। OSNIT is used to counter the threat of attacks due to the clues that entities leave exposed, compromise security. Similarly to a vulnerability spanner, to discover flaws in the system, OSINT tools gather complex data। टूल्स है OSINT के, टूल्स के बारे में भी हम बातें करेंगे। Gather complex data like date of birth, identification numbers like social security numbers, family relations, or even day-to-day routes and hobbies that become the building blocks of compromising the security of an account. OSINT includes all publicly accessible sources of information। publicly सब कुछ public है, accessible, publicly accessible, वहां से सारे डेटा उठाते हैं। information can be found either online or offline, जैसे मैंने बोला। ऑनलाइन में क्या है? थ्रू youtube.com, wikis, या उसके बाद डिजिटल फाइल्स, मेटा डेटा, डोमेन नेम्स, डार्क वेब, आईपी एड्रेस, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग साइट, उससे निकाल सकते हैं। और ऑफलाइन क्या है? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, academic publications, dissertations, conference proceedings, company profiles, annual reports, company news, employee profiles and resumes, annual reports, conference proceedings, employees profile, press release, government publication, courts proceedings and information agencies। Advantages क्या है? One of the biggest advantage of using OSINT is cost। कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि पब्लिकली पड़ा हुआ है, फ्री है। तो दिस कॉस्ट इज वेरी लेस compared to traditional information collection tool। OSINT offers a potentially greater return of investment, and this feature is particularly relevant for organizations with a tight intelligence budget। जिसमें जिसका बजट बहुत कम है ना, वो OSINT यूज करेंगे। In addition to OSINT has many advantages when it comes to accessing and sharing information। Information भी free है, it can be legally and easily shared with anyone। Open source are always available and constantly up to date on any topic। up to date ही होते हैं। Twitter, for example, is open and accessible। Last but not the least, information gathered from public sources is a great resource for intelligence, for national security, and can be used to support creation of long-term strategies for a variety of business goals। सबके लिए these are the advantages। जो हमारा कभी कभी बोलते नहीं है, ये इंटेल ने बताया जो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंटेल से सोर्स से, ये क्या होता है? ये OSINT के थ्रू से, ये सारे पब्लिकली अवेलेबल है सारे डेटा, लेकिन हमें पता नहीं है। वो लोग हमेशा ही 24/7 वो लोग को उस डेटा से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है, और उसी से इन्फॉर्मेशन वो निकाल के वो ये करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं हमारे कंट्री की, ताकि अटैक ना हो।
of disadvantages of OSINT. One of the biggest problems is the potential information overload. Filtering insight from the noise can be difficult. उसको निकालना भी difficult है, easy नहीं है. खाली डेटा लेना ही नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालना ही बहुत मुश्किल है. उसके लिए OSINT टूल्स हम यूज करेंगे. OSINT is also not ready to use. It requires a large amount of analytical work from humans in order to distinguish valid, verified information from false, misleading, or simply accuracy news, and information must be validated. तो उतना easy नहीं है. To get the most of the OSINT, required a detailed analysis and understanding of the requirements for using it. Moreover, the choice of using OSINT should not be based on cost versus traditional intelligence. Cost should not be based on that. Cost कम है तो फिर हम कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं. Because it doesn't exclude the traditional info gathered from classified sources. Combining OSINT and traditional intelligence sources is a powerful approach for business intelligence. अब इसमें क्या कौन कौन सा टूल्स हम यूज करें? Tools used for OSINT are Maltego, The Harvester, Shodan, Spiderfoot, Spice, built with Intelligence X, MetaGoofil, Search Code, Google Docs, Recon, BabelX, Meta क्या. अब क्या है, ये जो टूल्स है ना, इसमें बहुत सारे फ्री टूल्स है. आप लोग बोलते बार बार बोलते हो जो हमारा प्रैक्टिकल्स में क्या आएंगे, तो आपको ये सब टूल्स के बारे में पता होना चाहिए. आपके बुक्स में भी होंगे टूल्स के बारे में, प्रैक्टिकल्स. तो वो सारे देखिए और आप लोग क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा इंटरनेट से भी उसको प्रॉपर पता कीजिए और वो सारे टूल्स को इंस्टॉल कीजिए एंड वर्क ऑन इट. ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी इस टूल्स के बारे में. यही तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, और होते क्या है. So that's all. If you like the lecture, so please do like and share with your friends also, because they also need this lecture the way you people all need. Okay, so share these lectures. Okay, and comment if you do like the video, or comment on it. And if anything that you do not understand, please comment, and I am going to sort that out. That's all. Thank you. Bye. Take care.